Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about lungfishes and the present or extant species of lungfishes, including the three living genera of lungfishes like Protopterus, Lepidoxyron and Neoceratodus. So now the question arises, why lungfishes are named so? Because air sacs in these fishes are changed into lungs, therefore they are called as lungfishes. And there are three living genera of lungfishes which are surviving today. These are Lepidoxyron, Protopterus and Neoceratodus. Now there are six species of living air-breathing fishes and several extinct relatives belonging to the class Sarcopterygiae and characterized by the possession of either one or two lungs. Now we will discuss about the three genera of living lungfishes one by one. The first genera is Lepidoxyron. Lepidoxyron or South American lungfish is the single species of lungfish found in swamps and slow-moving waters of Amazon, Paraguay, and Lower Parana river basins in South America. And notably, they are obligate air breather, and it is the sole member of its family, Lepidosirenidae. Relatively little is known about the South American lungfish. Additional common names include American mudfish and scaly salamanderfish. Juvenile lungfish feed on insect larvae and snails, while adults are omnivorous, adding algae and shrimp to their diets. As I already have told you that they are found in tropical South America and they can survive when rivers and lakes are dried. They make burrow in mud and they keep an air pathway open by bubbling air to the surface. Small openings in the earth are produced after the substrate dries. These openings are only the evidence of the presence of lungfishes. यानी ये जो लंगफिशेस का जीनस है इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज़ पाई जाती है और ये जो है वो उस वक्त भी सर्वाइव कर सकती हैं जब रिवर्स और लेक्स के जो बेड्स हैं वो ड्राई हो चुके होते हैं और ये बरो बना लेती है मड के अंदर और अपना एयर पाथवे कैसे ओपन रखती है कि बबलिंग कर रही होती है, बबल्स को ऊपर की तरफ ये छोड़ रही होती है और अर्थ के अंदर अगर स्मॉल ओपनिंग कहीं पे पाई जाए जहाँ पे खुश्क हो चुकी हो तो ये एविडेंस होता है कि यहाँ पे इसके नीचे क्या है, लंग फिश पाई जाती है। तो लेपिडोजायरन जो हैं ये ग्रीक वर्ड से है, लेपिडो मीनिंग स्केली एंड जायरन मीनिंग मिथिकल मरमेड। अब हम डिस्कस करेंगे कि मरमेड क्या है। इन फोकलोर यानी कहानियों के अंदर अ मरमेड इज़ एन एक्वेटिक क्रिएचर विद द हेड एंड अपर बॉडी ऑफ अ फीमेल ह्यूमन एंड द टेल ऑफ अ फिश। यानी एक ऐसी क्रिएचर जिसमें उसका हेड और अपर बॉडी तो ह्यूमन फीमेल की तरह की हो लेकिन टेल जो है उसकी फ़िश की तरह की हो, जिसको हम जल परी भी कह सकते हैं। In this slide you can see the image of Lepidoxyron. Like the African lungfishes, Lepidoxyron has an elongated, almost eel-like body and it may reach a length of 125 cm. The pectoral fins are thin and thread-like, while the pelvic fins are somewhat larger and set far back. The fins are connected to the shoulder by a single bone, which is marked difference from most fish, whose fins usually have at least 4 bones at their base, and a marked similarity with nearly all land-dwelling vertebrates. The gills are greatly reduced and essentially non-functional in the adults. In this slide you can see a mermaid, यानी एक मिथिकल मरमेड ये दिखाई गई है जिसमें आप उसकी टेल फिश लाइक देख सकते हैं और बॉडी जो है ह्यूमन फीमेल लाइक है, जैसा कि आपको इसके नाम का बताया था मीनिंग लेपिडोजायरन का। अब हम सेकंड लिविंग जेनरा के लंग फिशेस की बात करेंगे, वो है नियोसिराटोडस एंड इट इज़ आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नियोस मीनिंग न्यू and cerato meaning horn and odis meaning foam. And these lungfishes live in fresh water of Queensland, Australia.
So the Australian lungfish Neoceratodus forsteri, also known as Queensland lungfish, Burnet salmon and barramunda, is a surviving member of the family Neoceratodontidae and order Ceratodontiformes. It is one of only 6 extant lungfish species of the world and it is endemic to Australia. यानी ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली लंग फिश की स्पीशी है। इसमें सिर्फ इस जीनस के अंदर नियोसिराटोडस के अंदर एक ही स्पीशीज़ पाई जाती है जो है नियोसिराटोडस फोर्स्टेराई एंड दे सर्वाइव इन स्टेगनेंट वाटर बाय ब्रीदिंग इन एयर। यानी जो पानी साकन होता है, जो स्टिल वाटर होता है, उसके अंदर ये एयर के अंदर ब्रीदिंग करते हुए क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं। बट दे नॉर्मली यूज़ गिल्स फॉर ब्रीदिंग एंड कैन नॉट विद स्टैंड इन टोटल ड्राई कंडीशंस। अब ये जो लंग फिशेस का जैनरा है ये मुकम्मल जो है खुश्क साली को या ड्राउट कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं एंड दे आर मोस्ट सिमिलर टू अर्ली फॉर्म्स। यानी जो सबसे प्रिमिटिव फिशेस थी लंग फिशेस जो आज से करोड़ों साल पहले ज़मीन पे पाई जाती थी, इनका जो है उनसे एक लिंक मिलता है। इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं करैक्टरिस्टिक्स की बेशुमार उनके साथ रिजेंबल करती हैं एंड दे में अटेन अ साइज़ ऑफ 1.5 मीटर। In this slide you can see the image of Neoceratodus forsteri जो कि ऑस्ट्रेलियन लंग फिश की एक सिंगल स्पीशीज़ है, यानी जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड दिस स्पीशीज़ लिव्स इन स्लो फ्लोइंग रिवर्स एंड स्टिल वाटर इंक्लूडिंग reservoirs that have some aquatic vegetation present on banks. It occurs over mud, sand or gravel bottoms. Australian lungfish are commonly found in deep pools of depths between 3 and 10 meter and live in small groups under submerged logs, in dense banks of aquatic macrophytes or in underwater caves formed by the removal of substrate under tree roots or river banks. The lungfish is tolerant of cold but prefers waters with temperatures between 15 and 25 degrees centigrade. As I already have told you that the Australian lungfish is incapable of surviving complete desiccation of its habitat, although it can live out of water for several days if the surface of its skin is constantly moist. Unlike the African species Protopterus, it doesn't survive dry seasons by secreting a mucus cocoon and burying itself in the mud. And it is essentially a sedentary species, spending its life within a restricted area. Now we will discuss about the third and last genre of living lungfishes, which is Protopterus. And the word Protopterus is derived from the Greek word protos meaning first and pteron meaning wing. So Protopterus is the genus of 4 species of lungfishes which are found in tropical Africa, and they are found in freshwater lakes and rivers, which includes streams and ponds. And they burrows down at the approach of dry season and secretes a copious slime which mixes with mud to form a hard cocoon in which it remains dormant until rains return. And they acquire oxygen from the atmosphere with their lungs and efficiently delivers it to their tissues with partially separated pulmonary and cardiovascular circuits. यानी जो अफ्रीकन लंग फिशेस हैं ये क्या करती हैं, जब ड्राई सीज़न आता है तो ये बरोज़ बना लेती हैं और अपने इर्द गिर्द जो है ये स्लाइम की सिक्रेशन बेशुमार करती हैं, जिसको वो मड के साथ मिला के एक हार्ड कोकून की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं अपने इर्द गिर्द, और उसके अंदर ये डोरमेंसी की स्टेट में रहती हैं। तब तक ये डोरमेंसी की स्टेट में रहती हैं जब तक कि दोबारा रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, जब तक बारिशें दोबारा शुरू नहीं हो जाती हैं। और ये ऑक्सीजन कैसे हासिल करती हैं, अपने लंग्स के ज़रिए हासिल उन दिनों में कर रही होती हैं और अपने ये टिश्यूज़ को देती जाती हैं ऑक्सीजन को। और इनका हार्ट भी बड़ा स्पेशलाइज्ड है कि इनके हार्ट के अंदर पार्शली सेपरेशन हुई है पल्मोनरी और कार्डियोवैस्कुलर सर्किट्स की। जैसा कि आपको स्विम ब्लैडर वाले लेक्चर में बताया था कि जो लंग फिशेस हैं इनके भी हार्ट के अंदर जो है पार्शल जो है वो क्या हुई सेपरेशन हुई बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो लंग फिशेस हैं प्रोटोप्टेरस, इनका पहले भी आपको बता दिया है कि ये अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर। सो हम इस स्लाइड में एस्टिवेशन इन अफ्रीकन लंग फिशेस को डिस्कस करेंगे।
Estivation is a dormant state that helps an animal to withstand hot and dry periods. यानी एक ख्वाबीदगी की हालत है जिसमें एक जानदार जो है वो ना तो कोई खुराक लेता है, ना पानी लेता है, ना ही नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा होता है। और ये कब कंडीशन आती है एस्टिवेशन की, जब हॉट और ड्राई सीज़न होगा या पीरियड होगा। यानी जैसे अफ्रीकन लंग फिश की हम बात करें तो चूँकि ये ट्रॉपिकल स्वैम्प्स में पाई जाती है अफ्रीका के, जो इनमें सीजनल ड्राउट आ सकता है, खुश्क साली हो सकती है। तो जो ही ये ड्राई सीज़न आता है या वाटर लेवल फॉल करता है तो ये लंग फिशेस क्या करती हैं, बरोज़ बना के मडी बॉटम के अंदर जो है वो चली जाती हैं और वहाँ पे जो है ये ऊपर की तरफ को सरफेस की तरफ को एक होल बना के उसके अंदर जो है वो एस्टिवेशन की कंडीशन में रहना शुरू कर देती हैं। तो इसको हम इस तरह की हालत को हम एस्टिवेशन का नाम देते हैं, जिसमें फ़िश अपने इर्द गिर्द कोकून बना के रहना शुरू कर देती है। सो व्हेन द रेन अगेन फिल्स द लेक और रिवर बेड द लंग फिशेस एमर्ज फ्रॉम देयर बरोज टू फीड और रिप्रोड्यूस। अब जब दोबारा ये जो ड्राउट सीज़न जो है वो ख़त्म होगा, रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और लेक या रिवर बेड्स जो हैं अगेन फिल अप हो जाएंगे वाटर के साथ, तो ये दोबारा अपनी बरोज़ में से निकल आती हैं, एक खुराक खाने के लिए भी या रिप्रोडक्शन करने के लिए भी। लंग फिशेस रिमेन इन एस्टिवेशन फॉर 6 मंथ्स और मोर। अब ये डिपेंड करता है कि अगर तो रेनिंग जल्द शुरू हो जाए तो ये फ़िशेज़ 6 मंथ्स तक तकरीबन जो है वो रेनिंग स्टार्ट अक्सर हो जाती है, तो ये फ़िशेज़ अपनी बरों से वापस निकल आती हैं और एस्टिवेशन कंडीशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सालों तक भी एस्टिवेशन की कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हैं अफ्रीकन लंग फिशेज़ जो हैं। In estivation, the lungfishes takes no food or water and excretes no waste nitrogen. अब एस्टिवेशन की कंडीशन जब होती है तो ये अफ्रीकन लंग फिशेस ना तो कोई खुराक लेती हैं ना पानी लेती हैं, इसी तरह से इनके अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट भी पैदा नहीं होता है। This is the image of one of the 4 African lungfishes that is Protopterus annectans. African lungfishes are elongated, eel-like fishes with thread-like pectoral and pelvic fins. They have soft scales and the dorsal and tail fins are fused into a single structure. They can either swim like eels or crawl along the bottom using their pectoral and pelvic fins. The largest species reach about 200 centimeters, that is 6.6 feet long. African lungfishes generally inhabit shallow waters such as swamps and marshes. They are also found in larger lakes such as Lake Victoria. They can live out of water for many months in burrows of hardened mud beneath a dried stream bed. They are carnivorous and they eat crustaceans, aquatic insect larvae and mollusks. तो आप स्टूडेंट्स इस स्लाइड के अंदर लंग फिशेस का कोकून देख सकते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीशंस की वजह से इसकी बना है और ये अफ्रीकन लंग फिशेस की प्रॉपर्टी है कि वो कोकून फॉर्मेशन कर लेती हैं जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजनल कंडीशन होती हैं और ये कोकून तकरीबन 1 से 1.5 फुट नीचे जो है बरो बना के उसके अंदर ये रहने लग जाती हैं। अब ये कोकून में अगर आप देखें तो कोकून की एक कैप है और ये लंग फिश का यहाँ से माउथ है जिसके अंदर ये क्या हुई फोल्ड होके गई हुई है और ये इसका पेल्विक फिन इस साइड पे आपको दिखाया गया है, ये इसका पेक्टोरल फिन है आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये ऊपर की तरफ एक शॉर्ट ट्यूब है जिसके ज़रिए से इसका कनेक्शन क्या है आउटसाइड यानी कि जो है वो एनवायरनमेंट के साथ है, यानी मर्ड के अंदर एक छोटा सा ऊपर एक पोर है या सुराख बना हुआ है जहाँ से ये कनेक्शन है बाहर की तरफ और ये क्या करती सांस ले रही होती है। अब लंग फिशेस इस कंडीशन के अंदर ना तो कोई वेस्ट एक्सक्रीट करती हैं, ना ही खुराक खाती हैं, ना ही नाइट्रोजनस वेस्ट को ये पैदा कर रही होती हैं। तो इस तरह ये एस्टिवेशन की कंडीशन में 6 महीने या इससे ज़्यादा भी रह सकती हैं या कुछ ऐसी मछलियाँ भी इसमें हैं जो कि कई साल तक भी रह सकती। जो ही ड्राउट कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी यानी रेन आएगी तो ये दोबारा क्या करेंगे इस मड में से यानी कि जो है वो वापस निकल आएंगे एस्टिवेशन स्टेट से, ये दोबारा जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। तो इस तरह से इनका जो है ये एक यानी कि सर्वाइविंग के लिए इनके अंदर क्या है ये एक अडेप्टेशन है कि म्यूकस कोकून बना लेती हैं अपने इर्द गिर्द जब जो है वो कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को सर्वाइव करने के काबिल बना रही होती हैं। So the African lungfish Protopterus lives in quite tropical swamps water which are subject to seasonal drought. At the onset of the dry season, as the water level falls, the lungfishes burrows into the semi-solid muddy bottom and comes to lie some 1 to 1.5 feet deep in the mud at the bottom of a burrow leading to the surface. When the surrounding mud dries,
The mucus covering the fish hardens to form a thin brown cocoon which is contiguous with the fish at essentially all points in contact with the mud. The tube of dried mucus is the only direct contact with the outer environment and allows the lungfish a channel for breathing. In aestivation, the lungfish takes no food or water and excretes no waste nitrogen. And lungfishes have been known to survive this condition for several years, although usually the dry season lasts for only a few months. सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर आप एस्टिवेशन लंग फिशेज़ की देख सकते हैं वो कैसे करती हैं। तो देखें, जब वाटर लेवल फॉल कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये वाटर लेवल है, जो ही ये फॉल करता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, लंग फिश ने क्या किया है कि वो जो बॉटम था मड का, उसके अंदर उसने बरो बनानी शुरू कर दी और ये बरो के अंदर देखें दोबारा फोल्ड बैक हो रही है, ऊपर की तरफ इसका ये माउथ जो है वो आ रहा है। तो इसने क्या किया, ऐसे ये नीचे की तरफ फोल्ड होती हुई इसने माउथ को अपने ऊपर की तरफ कर लिया है मड के अंदर, जैसे जैसे वाटर लेवल फॉल किया है। और यहाँ पे देखें वाटर लेवल बहुत कम रह गया है, तो इसने क्या किया, अपने आप को इस मड के अंदर जो है इस तरह फोल्ड कर लिया है और ये कोकून की एक शक्ल इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये स्लाइम सिक्रीट कर रही होती है। वो स्लाइम जब मड के साथ मिलता है तो कोकून की एक शक्ल बन जाती है, यानी एक हार्ड इर्द गिर्द इसके कवरिंग थिन बन जाती है, विच इज़ ब्राउनिश इन कलर मोस्टली। तो इस तरह से ये कोकून फॉर्मेशन करती है और इसके अंदर ही फिर बरो के अंदर इस तरह के जो है ना वो तकरीबन 1.5 फुट या 1 फुट नीचे जो है गहराई में रहना शुरू कर देती है एस्टिवेशन की कंडीशन में, जो 6 महीने तक तकरीबन रहती है। ये ज़्यादा महीनों में भी रह सकती है अगर ड्राउट की कंडीशन फेवरेबल ना हो, यानी रेंज जब आएंगी तो दोबारा ये यहाँ से अफ्रीकन लंग फिश जो है बाहर निकल आएगी और ये जो ऊपर की तरफ इसकी सरफेस है यहाँ से ये क्या करेगी, रेस्पायर करती रहती है। इसलिए ये होल यहाँ से जो है ऊपर की तरफ से ओपन रहता है, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रीदिंग करनी होती लंग फिश ने, तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्रीदिंग करती रहती है, इसके अंदर एस्टिवेशन की कंडीशन में ये पड़ी रहती है इस तरह से कोकून फॉर्मेशन करके। तो ये ड्राई सीज़न को जो है वो एस्टिवेशन की कंडीशन में जो है वो पास करती है, यानी सर्वाइव इस तरह से ये कर रही होती है ड्राई सीजन के अंदर। सो इन दिस स्लाइड देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लंग फिशेस। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश नियोसेराटोडस फॉर्स्ट्रेराई, आप उसका इमेज देख सकते हैं। इसी तरह से फिर दूसरे नंबर पे है अफ्रीकन लंग फिश प्रोटोप्टेरस एनेक्टन्स, तो ये उसका इमेज है। देखें, आपको दोनों का वाज़िया तौर पे डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, फिन्स के हवाले से भी और वैसे भी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में भी। तीसरी अगर हम देखें इसमें तो वो है साउथ अमेरिकन लंग फिश लेपिडोजायरन पैराडोक्सा, तो ये उसका आप इमेज देख सकते हैं कि वो किस तरह की नज़र आती है। और लास्ट वन इज़ डिवोनियन लंग फिश डिप्टीरस, यानी ये जो कोई जो एक्सटिंक्ट लंग फिशेज़ होती थी तो ये वो दिखाई गई कि वो किस तरह की नज़र आ रही होती थी या वो किस तरह की होती थी। तो ये जो हैं ऊपर वाली तीनों जो हैं दे आर द एक्सटेंट और लिविंग जेनरा ऑफ लंग फिशेज़, जबकि नीचे वाली क्या है, एक्सटिंक्ट लंग फिश आपको इसमें दिखाई गई है।